Good morning, students. Now, today we start next session of the chapter 3, pair of linear equation in two variables. In the last class, what we have discussed a graphical representation of pair of linear equation in two variable. So, graphically, we can represent the pair of linear equation in two variable by three different situations. Either the pair of linear equation are either intersecting, either parallel or either coincident. ठीक है, so उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, now today we'll discuss starts with a question. The pair of linear equation is given 2x plus 3y is equals to 9 and 4x plus 6y is equals to 18. Now solve this equations graphically, and if the solution exists then find its solution. ठीक है, यदि solution exist करता है तो वो solution आपको graphically calculate करना है. ठीक है, so before solve this pair of equation in two variable graphically, we examine that which kind of graphical representation of this pair of linear equation have. ठीक है, so first equation is 2x plus 3y equals to 9, तो that is minus 9 is equals to 0. a1 की वैल्यू हो गई 2, a2 की b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू minus 9. सेकेंड इक्वेशन 4x plus 6y minus 18 is equals to 0. तो a2 की वैल्यू हो गई 4, b2 की वैल्यू हो गई 4 और b2 की वैल्यू हो गई 6 और c2 की वैल्यू हो गई minus 8. Now we compare a1 upon a2 is 2 by 4, b1 upon b2 is 3 by 6 and c1 upon c2 is 9 by 18. Minus 9 by minus 18 तो minus minus cancel हो जाएगा. So that is a1 upon a2 ratio comes 1 by 2, b1 upon b2 ratio comes 1 by 2 and c1 upon c2 ratio comes 1 by 2. So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. So that condition represent the coincident line. So these pair of linear equation represent coincident line, and as we discussed earlier, the coincident line have infinite many solution and that system is consistent system. तो इस condition के basis पे what we have conclusion कि ये जो pair of linear equations है, ये जो pair of linear equation है, ये कैसी line है? coincident line को represent कर रही है. किसको represent कर रही है? coincident. ठीक है, और they have infinite many solution और that system is consistent system. कैसा system होगा? consistent system रहेगा and infinite many solutions are. ठीक है, so now we solve these equation graphically. ठीक है, तो कैसे graphically solve करेंगे देखिए. Now we solve these equation graphically. तो graphically किस तरीके से represent करेंगे देखिए. इस तरीके से हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया. ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस. ठीक है, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लें तो 2x plus 3y is equals to 9. x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 by 3 यानी 3. फर्स्ट पेयर बना 0, 3. सेकेंड यदि if we put the value of y is equals to 0 तो x हो जाएगा 9 by 2. तो सेकेंड पेयर is 9 by 2, 0. 9 by 2 is approximate 4.5. तो फर्स्ट लाइन के लिए आपका पेयर जो बना 0, 3 and 9 by 2, 0. देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5. फर्स्ट पेयर है जो है 0, 3 तो ये हो गया 0, 3 एंड 4.5, 0 तो 4.5, 0. ठीक है, दोनों को ज्वाइन करें. ठीक है, तो ये आपकी लाइन आ जाएगी. So this is the line 2x plus 3y is equals to 9.
ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो लाइन है वो है 4x plus 6y is equals to 18, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हो गई 3, तो फर्स्ट पेयर हुआ 0,3, सेकंड पेयर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हो गई 18/4, यानी अगेन 9/2, 0। तो सेम पॉइंट, ठीक है। तो इसी यही पॉइंट, यही लाइन आपकी इसको रिप्रेजेंट करेगी 4x plus 6y इक्वल्स टू 9 को भी रिप्रेजेंट करेगी, सॉरी इक्वल्स टू 18। ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो यदि हमें इस लाइन पर कोई एक और दूसरा पॉइंट भी लेना है तो हम जैसे लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। देखिए कि सपोज आप x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू सपोज आप प्लेस करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि आप x की वैल्यू 3 ले लें, तो ये हो गया 4 into 3 plus 6y is equals to 18, तो 6y is equals to 18 minus 12 यानी 6, तो y की वैल्यू हो गई 1, तो आपका पेयर बन गया 3,1, ठीक है। 3,1 ये कहीं यहाँ पॉइंट आएगा इसी लाइन पर 3,1, ठीक है। तो सारे पॉइंट जो होंगे वो इसी लाइन पर आपको मिलेंगे। सो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इनका कोइंसिडेंट पॉइंट यहाँ ये 0,3 रहेगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इससे लाइन आगे एक्सटेंड होगी। सो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट। एक सिंगल लाइन ही रहेगा जो क्या करेगा, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ we'll move to the next variety of questions in this exercise. Now next variety of questions, keep on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 and find out the line represent the pair of linear equations either intersecting or parallel or coincident, and also examine also check that this system is consistent or inconsistent। मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उनको कंपेयर, उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आपको बताना है कि वो पेयर ऑफ लाइंस जो हैं या पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो किस तरीके की लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। जिस तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका एग्जिस्ट करता है, मींस जो हमने 3 कंडीशंस डिस्कस करी थी उनमें से वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि सिस्टम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ग्राफिकली पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, और उसी बेसिस पे हम चेक करेंगे कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या फिर कैसा सिस्टम है वो चेक करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5x minus 4y plus 8 is equals to 0, and second is 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। now इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं x y के, उनको कंपेयर करना है। x y और कांस्टेंट टर्म्स के, x y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स के रेशियोज को कंपेयर करना है और उनको कंपेयर करके आपको चेक करना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए दोनों को हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए 5x minus 4y plus 8 is equals to 0, तो a1 की वैल्यू हो गई 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें 7x plus 6y minus 9 is equals to 0, तो a1 की वैल्यू हो गई 7, b1 की वैल्यू हो गई 6 और c1 की वैल्यू हो गई -9, ठीक है। तो a1 upon a2 चेक किया तो ये हो गया 5/7।
V1/V2 चेक किया तो ये हो गया -4/6 यानी -2/5। C1/C2 चेक किया तो दैट कम्स 8/-9 यानी -8/। यहाँ हमारा कंक्लूजन क्या आया कि A1/A2 is not equals to B1/B2 and that is a condition of intersecting line। ऐसी लाइन है ये intersecting lines है, और intersecting lines have a one solution। तो if it is one solution तो ये कैसा सिस्टम हुआ? consistent system। कैसा सिस्टम हुआ? consistent system। तो इस तरीके से A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैलकुलेट करेंगे, उनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर रेशियो को एग्जामिन करेंगे कि वो रेशियो किस तीन कंडीशंस में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी वैरायटी के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/2x प्लस 5/3y is equals to 7 and 9x minus 10y is equals to 40। ठीक है, अगेन रेशियो हमने कैलकुलेट किया। देखिए पहली इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 B1 C1 की वैल्यू निकाली। A1 is 3/2, B1 is 5/3 और C1 is -7। देखिए पहले इसको क्या किया, -7 is equals to 0 लिख दिया और यहाँ इसको लिख दिया -14 is equals to 0। तो देखिए A1 है x का कोफिशिएंट, B1 है y का कोफिशिएंट और -7 है कांस्टेंट। फ्रॉम इक्वेशन 2 B1 A2 is 9, B2 is -10 और C2 is -40। ठीक है, तो नाउ अगेन वी फाइंड द रेशियो। A1/A2 का रेशियो आया 3/2/9 तो हो गया 1/6। B1/B2 का रेशियो निकाला 5/3 इंटू -10। ठीक है, तो ये 1 और ये 2 तो ये हो गया -1/6। C1/C2 का रेशियो निकाला -7/-14 1/। Again A1/A2 is not equals to B1/B2। Again it represent intersecting line। ठीक है, और कैसा सिस्टम हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके चेक करना है कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस वैरायटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9x plus 3y plus 12 is equals to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equals to 0। ठीक है, अगेन आपको कंपेयर करना है रेशियोज ऑफ A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 A2 की वैल्यू 18, B2 की वैल्यू 6, C2 की वैल्यू 24। तो देखिए A1/A2 क्या आ रहा है? 9/18 दैट इज 1/2। B1/B2 क्या आ रहा है? 3/6 यानी 1/2। C1/C2 क्या आ रहा है? 12/24 दैट इज 1/2। देखिए A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। ठीक है, सो दैट रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सिस्टम, दिस कोइंसिडेंट लाइंस हैव अ इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। तो ये सिस्टम भी कैसा हुआ? कंसिस्टेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम हुआ कंसिस्टेंट सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ
Now we'll move to the next variety of question. Now we'll move to the next question. Question क्या है देखिए, given that the linear equation 2x plus 3y minus 8 is represent a linear equation in two variable, write the another linear equation in two variable such that a geometrical representation of pair so formed is intersecting line, parallel lines और coincident line. मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है. Now you just write down the second linear equation in two variable so that a pair of linear equation in two variable either represent intersecting line, either represent parallel line, either represent coincident line. अब हमें जैसा कि पता है कि जब हमने तीन कंडीशंस डिस्कस करी थी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या थी, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. तो देखिए a1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है -3. अब एक ऐसा इक्वेशन लिख दीजिए जिसमें a1 upon a2 का रेशियो और b1 upon b2 का रेशियो डिफरेंट हो जाए. तो जैसे अब इसमें सेकेंड इक्वेशन आप इनफाइनाइट ऐसी लाइंस लिख सकते हैं, इनफाइनाइट पेयर ऑफ इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन इसमें आप लिख सकते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. So for intersecting line to represent a pair of linear equation in two variable as a intersecting lines, second equation हो जाएगी जैसे 3x plus 2y minus 5 is equals to 0. तो देखिए अब जैसे आपने ये इक्वेशन लिखी, अब जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो सकती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो से इक्वल नहीं होना चाहिए. तो a1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, b1 की वैल्यू क्या हो गई 2. तो आप देखिए a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या आया, a1 सॉरी ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और c2 की वैल्यू -5. तो a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या हो गया 2/3, ये 2 है ये 3. b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या हो गया 3/3. So 2/3 is not equals to 3/3. So that pair of linear equation, this equation 1, this equation 2, represent the pair of linear equation which graphically represent the intersecting line. ठीक है. Now second, to represent the pair of linear equation in two variable as a parallel lines, condition क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. तो a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के इक्वल होना चाहिए. तो फॉर पैरेलल लाइन आपकी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के इक्वल होना चाहिए. तो ये हम लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 5. तो a2 हो गया 2, b2 हो गया 3 और c2 हो गया -5. तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया 2/2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 क्या हो गया 3/3. तो 1 इज इक्वल्स टू 1. तो a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के इक्वल है. सो नाउ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं पैरेलल लाइंस. एंड द पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन. पैरेलल लाइंस का क्या होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा. नाउ थर्ड सिचुएशन, नाउ वी रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ कोइंसिडेंट लाइन. तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, कंडीशन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. ठीक है. तो फॉर कोइंसिडेंट लाइन आपका नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, देखिए कोइंसिडेंट लाइन के लिए जैसे आपने लिख दिया 4x प्लस 6y माइनस
16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब a1 अपॉन a2 का रेशियो क्या हो गया 2/4, b1 अपॉन b2 का रेशियो 3/6, c1 अपॉन c2 का रेशियो -8/-16। तो रेशियो आ गया 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2। तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. So that line and that line, that pair of linear equation represent the coincident line. Is it clear? So these variety of question basically asked in a first exercise. First exercise के अंदर इस variety के questions आपको पूछे जाते हैं. Now we'll discuss certain subjective question जिसमें आपको situations जो है वो वर्डिंग्स में दे रखी हैं. पहले उनके लिए आपको इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर उनको ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. Now we'll do the some subjective questions. ठीक है, क्वेश्चन है the coach of a cricket team buy 3 bats and 6 ball for rupees 3900. Later he buys another bat and 3 more balls of same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and solve it geometrically. ठीक है, एक कोच है जो क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल परचेज कर रहा है 3900 रुपीज में. उसके बाद एक और बैट और 3 बॉल्स परचेज कर रहा है 1300 रुपीज में. तो आपको इस सिचुएशन को ग्राफिकली एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व भी करना है. तो जैसे सपोज लेट्स सपोज क्वेश्चन क्या है कि लेट्स सपोज प्राइस ऑफ 1 bat is X rupees and price of 1 ball is Y rupees. तो पहले केस में उसने कितना बैट परचेज किया है, 3 बैट परचेज किया है और 6 बॉल परचेज किया है एंड टोटल अमाउंट इज 3900. तो 3 बैट का अमाउंट कितना हो गया 3x, 6 बॉल का अमाउंट हो गया 6y and that total amount is 3900. ये आपकी algebraic representation हो गया सिचुएशन का. लेटर ऑन उसने क्या किया, एक और बैट परचेज किया, 3 और बॉल परचेज करी, यानी x plus 3y is equals to 1300. सो जो आपकी सिचुएशंस थी उन सिचुएशन को algebraically हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली जिसे बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करना है और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि बैट का प्राइस कितना होगा और बॉल का प्राइस कितना रहेगा. ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई. तो हम आपको सॉल्व करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यही हम चेक कर लेते हैं. x की वैल्यू यदि 0 है तो y की वैल्यू हो गई, y देखिए 3900 by 6, ये हो गया 650. ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया 0,62. ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x प्लस इक्वेशन 1 में ही सॉरी y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू हो गई 3900 by 3, तो ये हो गया 1300, तो वैल्यू हो जाएगा 1300, 0. ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है x plus 3y is equals to 1300. तो इसमें पहले x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 1300 by 3, तो ये हो गया. ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने, डेसिमल में रहेगा तो फ्रैक्शन में ही रहने देते. तो पॉइंट हो गया 0,1300 by 3. ठीक है, और सेकंड y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300, हो गया 1300, 0.
ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए यहाँ से आपको मिल जा रहा है 1300, 0। ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ग्राफिकली ग्राफ बना ले। हमारे पास दोनों लाइंस के लिए सॉल्यूशंस हम एक साइड एक तरफ लिख देते हैं। देखिए पहली लाइन के लिए सॉल्यूशन है 0,650 और 1300, 0। और फॉर सेकेंड लाइन कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1300/3 और 1300, 0। ठीक है। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। x ये y, ठीक है, 0, फिर ये ले लिया 200, 400, 600, 800, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं 300, 600, 900, 1200, 1500। ठीक है, इस तरीके का टेबल ले लिया। और y पे हमने ले लिया 100/3 ना, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इस तरीके से x एक्सिस पे हमारी टेबल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 300 रुपीस और y एक्सिस पे हमारी स्केल है x 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 रुपीस। अब पहला लाइन हमें रिप्रेजेंट करना है 0,650, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है 1300, 0, तो ये 1300, 0 यहाँ लेना, ये पॉइंट 1200 और 1500 के बीच में जस्ट ये बार हमारा। सेकेंड है हमारा 0,1300/3, 1300/3 यानी हो गया 433। ठीक है। तो करीब करीब 400 और 300 के बीच में यहाँ है, 400 और 500 के बीच में यहाँ ये 433 और 1300, 0, तो ठीक है। इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमारा ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये आपका दोनों लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा। ये पहली लाइन थी 3x + 6y = 3900 और ये आपका x + 3y = 3900. So that is a graphical representation. First we'll represent the situation algebraically, then we solve the graphically. Is it clear? Now next question. Draw the graph of 2x plus y = 6 and 2x minus y plus 2 = 0. Shade the region bounded by these line and x-axis and also find the area of the shaded region. ठीक है। इन दोनों लाइन और x-axis, दो लाइन और x-axis, तीसरा लाइन जो होगा वो x-axis होगा, उससे जो रीजन बाउंड हो रहा है वो रीजन आपको शेड करना है। ठीक है। और उसका एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इन सिचुएशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। सो फॉर इक्वेशन 1 2x + y = 6, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू हो गई 6, तो पहला पेयर बना 0,6। y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हो गई 3, तो हो गया 3,6। ठीक है। ये आपका पहला पेयर बन गया। नेक्स्ट फॉर इक्वेशन 2 ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए देखिए, इक्वेशन 2 है आपकी 2x - y = -2। ठीक है। तो x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं। ठीक है। तो y की वैल्यू आ रही है 2, 0, और यदि y की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू आ गई -1, ये हो गया -1। तो पेयर क्या बन गया 0,2
एंड -1, 0। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को मुझे ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए इक्वेशन लाइन 1 के लिए मैं जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दे रहा हूँ 0,6 एंड 3,0। इक्वेशन सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट है 0,2 एंड -1,0। ठीक है, अब इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 या -1। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट मैंने रिप्रेजेंट किया 0,6, ये 0,6 और 3,0। लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन 2x प्लस y इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट है 0,2 -1, -1,0, -1,0। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों लाइन का, और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो उसमें बोला है कि एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से जो एजेस शेडेड हो रही है वो रीजन आपको शेडेड कर देना है, ये रीजन आपने शेड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है -1,0, ये आपका 3,0। ठीक है, और ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का। ठीक है, ये आपका रीजन शेड होगा। ठीक है, अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे तो उसमें हाउ टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस शेडेड रीजन का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ एरिया को शेड करना है, तो ये आपका ट्रायंगुलर रीजन का एरिया है जिसको हमने शेड कर दिया। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ठीक है, टुडेज सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय डिफरेंट मेथड्स। 3 मेथड्स आर देयर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ये 3 मेथड है जिसके थ्रू हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो थैंक यू अबाउट द टुडेज लेक्चर।